Hello everyone. Today we will discuss about Indus Valley civilizations, which is also called Harappan civilizations, due to the development of this civilization on the bank of Indus Valley or Indus Valley region. So it is called Harappan civilization as or Indus Valley civilization. This is very important to know about that what's going on in this area during that time. And this civilizations belong to the Pakistan and western Indian subcontinent region. Right now you can find some places of Indus Valley civilizations. You can see here like Manda is northernmost site of Indus Valley civilizations, and Alamgirpur is in Uttar Pradesh, that is the easternmost side of Indus Valley civilization. Sutkangedur here is Sutkangedur is the westernmost side of Indus Valley civilizations, as well as Daimabad is in Maharashtra, is the southernmost site of the Indus Valley civilization. This is the extent of Indus Valley civilizations. So you can find here, you make a rectangle from Manda to Kangedur as well as Daimabad and Alamgirpur to Manda. Then you will find that all cities as well as all place or sites surrounded between these regions developed around or across the Indus Valley civilizations, which is we know very well Indus Valley or Indus River originated from Himalayan region, and west flowing river drain her water into the Arabian Sea, and you will find from Jammu Kashmir to till Gujarat as well as in Pakistan area, most of the site related to these areas. So right now we will start our lecture from first things. You can see here, this is the these are the some basic things which is related to the Indus Valley civilization, and they have importance about what's going on in this area. Like a number of things is related to these places, by which you can find a number of evidences. So right now we will move in next one. These are the some points which we will discuss in our upcoming video of upcoming slides. Like what is content means, first I will give you introduction about Indus Valley civilizations and what is the limitation of Indus Valley civilization, what is the characteristics of Indus Valley civilization, phases of Indus Valley civilizations like pre pre Harappan phase, mature Harappan phase, and as well as later Harappan phase or Indus Valley civilization phase. Salient features about Indus Valley civilizations like which type of town planning, economic condition, art and culture, religion, social life, technology, etc. And next one that is also very important, sites, and many times in exam ask about sites like Harappa. What is the location of Harappa, Mohenjo-daro, Sutkangedur, Dholavira, Banwali, Rakhigadi, Mehrangarh, etc. There are other places like Ropar, Daimabad, Manda. There are some. These are some other places or sites. They have also importance in itself. And next we will discuss about how Harappan civilization declined, as well as like Aryan invasion, climatic changes, uh, change of river course, etc., or famine, disease, etc. These are some historical concepts
are historical facts which is present to the decline of Indus Valley civilizations. We will discuss these things in upcoming slides, and later we will conclude all things to related Indus Valley civilization, that what we discuss in these things. Right now we will move in next one, that first things is introduction. What is Indus Valley civilizations? Like what is civilizations? You can see here that what is saying by Franklin D. Roosevelt. He was the president of United States of America. He gave a very remarkable statement about civilizations, like if civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationship, the ability of all peoples of all kind to live together in the same world at peace. Means here is giving to priority about living together with peace. That is the most civilized society of this world, saying by Franklin D. Roosevelt, former president of United States of America. And first things what I write about civilization is the stage of man's development, as we know very well, from nomadic life or barbaric life to change a civilized person or civil person or educated person. That is the development when we looks for more than just the satisfaction of material needs. सभ्यताएं मतलब ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अपने फिजिकल नीड्स को त्याग कर, मटेरियल नीड्स को त्याग कर, है ना, देन जस्ट द सेटिस्फेक्शन व्हेन वी लुक्स फॉर मोर देन जस्ट, हम अपने जब अपने मटेरियल नीड्स को भी त्याग कर स्पिरिचुअलिज्म या फिर किसी और चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि हमारे मटेरियल लाइफ से भी और चीज़ें मतलब डिफरेंट होती है. दैट इज़ द डेवलपमेंट, दैट इज़ द सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट. Indus Valley civilizations also known as the Indus Valley civilization or Harappan civilization. मैंने आपको जैसे पहले बताया, क्योंकि this civilization is developed on the bank of Indus Valley, Indus River. It is the earliest known urban culture of the Indian subcontinent. The nuclear dates of the civilization appear to be about 2500 to 1700 BC. This is the mature Harappan period of Indus Valley civilizations. This is the mature Harappan period or Indus Valley civilization period. Southern sites maybe have lasted later into the second millennium BC. Among the world's three earliest civilizations, as we know very well, there are four similar civilizations which exist together, like Egypt on the bank of Nile River, Egypt civilization on the bank of Huangho River, Chinese civilizations, as well as on the bank of Dajla Frat rivers, that is the Mesopotamian civilizations. Where is Mesopotamia? Mesopotamia, as we know very well, Iraq region. So these are the some most famous civilizations which exist during the period of Indus Valley civilization, and we can say that this is the most extensive form of Indus Valley civilizations in these regions. Indus Valley civilization represent the earliest manifestation of urban development in the plains of the Indus Valley and its extension along the Arabian Sea coast. जैसा कि हमने अभी आपको एक मैप दिखाया था कि जैसे वहाँ पे इंडस रिवर जो है अपना वाटर कहाँ पे ड्रेन कर रही है, अरेबियन सी में कर रही है. अभी हम आगे मैप को फिर से देख लेंगे. The four principal settlements are so far excavated provide the material to reconstruct the cultural content of the civilization to lie in Pakistan, Harappa, as we know very well, Harappa, Mohenjo-daro, etc. lie on the Pakistan right now due to the partition of India, divided into two countries. First is India and other is Pakistan. So most of the Indus Valley civilization sites right now situated in Pakistan region due to the river of Indus due to Indus river. So we can say that there are a number of sites to related this place.
as we know very well, we will move in next one. Harappa is also called that Haryupa. You can find here that Haryupa in Rig Veda is situated an old bed Subr Karava of the river Ravi in Sahiwal district of Punjab, and Mohenjo-daro means mound of dead because here is found a number of things which is dead, like dead remains like jewelry, skeleton of animal, man, etc. find on the from which place? Mohenjo-daro is on the right bank of the Indus River in Larkana district of Sindh region. The other two sites are in western India. Lothal, you can see here Lothal, and another most important site that is you can find here Kalibangan. These are some other most important site. Kalibangan, Kali means black, Bangan, that is also similar pronunciation like Bengals, जिसको आप चूड़ियाँ बोलते हो. तो यहाँ पे बहुत सारे हियर मतलब बहुत सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं ब्लैक बेंगल्स के. सो दिस साइट इज़ कॉल्ड काली बैंगन. जैसे कि मोहनजोदड़ो, यहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज़ के साथ रिमेन्स मिले हैं उनके स्केल्टन के साथ, तो इसको माउंट ऑफ डेड बोला गया है. तो सेम ऐसे ही इनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट दीज थिंग्स फ्रॉम इन योर लाइफ. सो you can see here they lies from some 310 kilometer northwest of Delhi along the left bank of the now dry river, that is the Ghaggar river. So just remember one thing, that Indus Valley civilization is also known as Ghaggar Hakra river civilization. Why? Old Saraswati is also called Ghaggar river, and Hakra is a system which is developed in northern Rajasthan region. So this region, this area, these places are called Ghaggar Hakra civilizations also. So you must remember these points because this is very important for your exam perspective, because sometimes question can be asked that give a brief introduction about Ghaggar Hakra civilization or system. So you must relate these things, that this is belong to the Indus Valley civilization, or another name of Indus Valley civilization. The antecedents of this urban civilization not clear. How and under what conditions a transition of the urban development took place. Trade through land connections across Afghanistan with eastern Iran and Turkmenistan was noted in the previous culture. The Indus civilization for the first time also established overseas trade. The advantage gained through new mechanics of trade may have enabled an adventurous community to make a bid for the mastery of their resources and lay the foundation of a political system that imposed their supremacy over the entire Indus zone. So you can find here that Kalibangan evidences again show a new pattern of urban planning on an earlier fortified settlement. Such a sudden change is also noticed at Amri, Kotdiji and Balakot. These are places situated along the bank of Indus River. So Indus civilizations existed through its early years of what is the period. Just I want to tell you about that. From 3300 to 1300 BCE, this period is belong to the Indus Valley civilizations. So mature period is from 2600 to 1900 BCE. Means you can say that this area is means this period is only for 700. जो 700 का जो 700 वर्ष का जो टाइम है वो उसको क्या बोल सकते हैं? मेच्योर हड़प्पन पीरियड, मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड. The area of this civilization extended along the Indus River from what today is northeast Afghanistan into Pakistan and northwest India. Indus civilization was the most widespread of the three early civilizations of the ancient world, along with ancient Egypt and Mesopotamia. Harappa and Mohenjo-daro were thought to be the two great cities of the Indus Valley civilization. So Harappa in 1920
When Dayaram Sahni uh, exca- excavated these sites, then he gave a name like Harappa. And Mohenjo-daro is name given by राखाल दास बनर्जी, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था, डिस्कवरी हुई थी, उसको राखाल दास बनर्जी ने किया था. ड्यू टू द डेड माउंट्स, फाइंडिंग ए नंबर ऑफ डेड माउंट्स फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड मोहनजोदाड़ो. एक मूवी भी आई है ऋतिक रोशन और सोनम कपूर की समथिंग, तो आप उसको भी देख सकते हो, मोहनजोदाड़ो मूवी. were thought to be the two great cities of the Indus Valley civilization, emerging around 2600 BC along the Indus River Valley in the Sindh and Punjab provinces of Pakistan. Their discovery and excavation in the 19th and 20th century provided important archaeological data about ancient cultures. Chronology you can find here like Sir M. Wheeler, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें किया था, जैसे कि एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड इन आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं, दीज आर द सम वेरी important evidence provide about the facts like what's going on in that time, so we can relate these things. After serving in World War II, Mortimer Wheeler was made Director General of Archaeology for the Government of India from 1944 to 1947. Means when India मतलब भारत आज़ाद होने वाला था, उस समय इनको क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का बनाया गया. यहाँ पे उनके रिसर्च किसकी तरफ फोकस थे, ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. यहाँ पे थोड़ा में भी चीज़ें छुप गया है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन कैसे हुई, वहाँ पे क्या इसका एक्सटेंट था, क्या चीज़ें थी, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी इन्होंने साइंटिफिक मेथड का एडवांसमेंट किया था. व्हीलर्स वर्क प्रोवाइडेड आर्कियोलॉजिस्ट विद द मीन्स टू रिकॉग्नाइज अप्रॉक्सीमेट डेट्स फ्रॉम द civilization's foundation through its decline and fall. The chronology is primarily based, as noted, on physical evidence from Harappan sites, but also from knowledge of the trade contacts with Egypt and Mesopotamia. एक जो बहुत कॉमन चीज़ थी, जो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से मंगाए जाते थे, वो था लेपिस लाजुली. इसका जो यूज होता था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसका यूज, क्योंकि इसको ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में या फिर कोई कल्चरल चीज़ें बनाने में इसका काफ़ी यूज होता था. तो ये इंडिया में इंडस वैली मीन्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से आया. तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा हमारा क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस है. यू कैन see here that like first is pre Harappan, next one early Harappan. This things is very important. अभी वहाँ पे 2600 से 1900 BC दिया था, but you can say that most like mature Harappan period belong to the this region from 206 to 1900 BC. This is the most mature period of Indus Valley civilizations, and here we know very well constructions of great cities and widespread urbanizations. Harappa and Mohenjo-daro are both flourishing during 2600 BCE. Other sites such as Ganeriwala, Lothal and Dholaviral are built according to the same models, and his development of the land continues with the construction of hundreds of other cities until there are over 1000 of them throughout the land in every direction. So we can say that ये काफ़ी एडवांसमेंट पीरियड था इसका, मीन्स काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई.
और लेटर ऑन लेट हड़प्पन पीरियड में आप देख सकते हो डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन कोइंसाइडिंग विथ ए वेव ऑफ माइग्रेशन ऑफ आर्यन पीपल। अच्छा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी एक है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि most likely from Iranian plateau. Physical evidences suggest climate change caused flooding, drought, and famine. A loss of trade relation with Egypt and Mesopotamia has also suggested as contributing cause. Post Harappan, the cities are abandoned and the people had moved south. Civilization had already fallen by the time Cyrus II invaded India in 530 BC. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अभी हमने इसी मैप को देखा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मांडा यहाँ पे है, सुतकांगे डोर आपको कहाँ, यहाँ कहीं पे आपको दायमाबाद मिलेगा जो कि महाराष्ट्र में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, नियर गाज़ियाबाद के आसपास। तो यहाँ पे भी आप चीज़ें देख सकते हो। तो इसी के अराउंड आप देखो, इसी के अराउंड आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड ही काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं, काफ़ी सारे साइट्स का डेवलपमेंट हुआ है। लाइक गनेरी वाला पाकिस्तान में है, और धौलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, कुंटसी, सोमनाथ, सुरकोतदा भी गुजरात में है। सुरकोतदा और बनवाली हरियाणा में है, और सुरकोतदा गुजरात में है। यहाँ से हमें हॉर्सेज के एविडेंसेस मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हॉर्सेज रिमेन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम हॉर्सेज वेयर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इन वार और बैटलफील्ड। सो यू कैन फाइंड हियर सम साइट्स लाइक चानूगढ़, बालाकोट, टामरी, आलादीनो, गाजी शाह, लखनऊ दारो, पठानी धाम. These are some sites. These are very important sites. So you must remember about these sites. We will move in next one. Indus Valley Civilization, early phase, mature phase, and later phase. This is the division of Indus Valley Civilization from 1300 to 1300 BCE. यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अर्ली साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर पादरी गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा कच्छ रीजन गुजरात में ही, हड़प्पा पाकिस्तान में है, और यहाँ पे कुछ और साइट्स हैं जैसे कि बालाकोट, आमरी एंड भिराना भी हरियाणा में है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना पड़ा, भिराना से ही कुछ गुप्ताज के भी कोइंस मिले हैं। तो ये भिराना जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट्स तो है ही, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि भिराना जो है वो गुप्ता पीरियड में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गुप्ताज के भी कुछ कोइन मिले हैं। तो ये भी आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कोइन इज आल्सो कमिंग इन टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड दे प्रोवाइड ए वेरी गुड एविडेंस अबाउट देयर प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि अगर सोने का बना होगा तो कोइंस अगर सोने का होगा तो मीन्स जो किंग है या क्वीन है वो बहुत ही पावरफुल है और उसके स्टेट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आप इस सब चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर लेना। अगर कॉपर कोइन है लाइक मोहम्मद बिन तुगलक की तरह, तो आप समझ लेना कि रूलर की इकोनॉमी जो है क्या वो थोड़ा डैमेज है, बेकार है, डिक्लाइन के स्टेज में है। ये सब भी चीज़ें हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, इसको हमें रिमेंबर रखना है। मेच्योर फेज में आपको दे सकते हो कि ये जो एरिया है वो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मांडा, सुतकांगी डोर, आलमगीरपुर है आलमगीरपुर, और ये आपका जो मालवा लिखा हुआ है, ये मालवा थोड़ा काट के आप यहाँ पे दामाबाद लिख देना। ये थोड़ा अलग चीज़ें हैं जो मेच्योर फेज में आते हैं। लेटर फेज में आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा है। साइट्स आर मोर इन नंबर बट दे आर स्मॉलर इन साइज, डिवाइडेड इनटू 5 पेजेस ना। तो ये थोड़ा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लास्ट की जो लाइनें हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी एंड अर्ली एक्सकेवेशन जो हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई वो 19वीं सेंचुरी में हुआ।
जेम्स लुइस, जिसे चार्ल्स मेसन भी बोलते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक आर्मी के आर्टली आर्टिलरी डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक सोल्जर था और उसको गद्दारी करने में, डिजर्टेड विथ अनदर सोल्जर, उसको गद्दारी करने के जुर्म में उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। बाद में उसको उसका डिजर्टेशन माफ़ कर दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट लाइन में यहाँ पे। और उसको डिजर्टेशन मतलब जब वो ब्रिटेन गया तो उसका अपना एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम जो था वो था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने एक बुक लिखा इंडिया के बारे में जो कि काफ़ी फेमस हुआ, और जिसकी वजह से उसका जो डिजर्टेशन था, मतलब उसका जो उसने फ्रॉडपन किया था, उसको माफ़ कर दिया गया और उसको काफ़ी सारी रिवार्ड और ये सब चीज़ें भी उसको दी गई। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे आप वन ऑफ दीज साइट्स वाज हड़प्पा, उसने कुछ साइट्स की डिस्कवरी की, कुछ वहाँ पे खोजा, जैसे कि कुछ न्यूमेटिक्स मिले वहाँ पे उसको, कोइंस। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है कोइंस, तो उसको कोइंस कलेक्टिंग का बहुत शौक़ था, जिसके थ्रू उसने एक थ्योरी दिया, और उस थ्योरी ये था कि वो इंडिया से रिलेटेड था, कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, उस बुक का नाम था, ही पब्लिश्ड हिज बुक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब इन 1842 में ही क्या हुआ था। 1843 में जैसा कि हम जानते हैं चार्ल्स नेपियर ने सिंध को कब्जे में लिया था, अपने जीता था, तो यहाँ पे भी उसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि 1842 से ही ये लोग वेस्टर्न इंडियन को कैप्चर करने के फिराक में पूरे तैयार थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, विच अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज इन इंडिया एंड स्पेशली इसको अलेक्जेंडर कनिंगम। इसी ने तो फिर क्या किया था, 1867 में ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसका हेड बनाया गया, और इसी के संरक्षण में, पैट्रनेज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट भी होता है। यहाँ पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट देख सकते हैं कि ये ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 1550 किलोमीटर, फ्राम सुतकांगे डोर टू आलमगीरपुर, और 1400 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, मांडा टू दायमाबाद, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में। मैं इसी साइट्स की बात कर रहा था आपको। अलेक्जेंडर कनिंगम, ए ब्रिटिश इंजीनियर इन द कंट्री विथ ए पैशन फॉर एंशियंट फास्ट हिस्ट्री, फाउंडेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861, an organization dedicated to maintaining a professional standard of excavation and preservation of historic sites. This is important. Cunningham began excavation of the site and published his interpretation in 1875. Identified and named the Indus script, but this was incomplete and lacked definitions because Harappa remained isolated with no connection to any known past civilization which could have built it. In 1904, a new director of ASI, किसके रेन में, इसके गवर्नर जनरलशिप में, लॉर्ड कर्जन, appointed John Marshall, who later visited Harappa and concluded the site represented an ancient civilization previously unknown. तो आप जैसा कि इसमें जानते हो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी। मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ द डेड बिकम्स ऑफ बोन्स बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, found there along with Paris artifacts. Excavation at Mohenjo-daro began in the 1924 to 1925 season, and the similarities of the two sites were recognized. Indus Valley civilization had been discovered. In 1912 में क्या हुआ, सर जॉन मार्शल को रिप्लेस करके जॉन फेथफुल फ्लीट आए, जो इंग्लिश सर्वेंट थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे हरप्पन सील को डिस्कवर किया और बहुत सारी चीज़ें उनके अंडर भी हुआ। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी ASI, रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा बाय 1931। मच ऑफ मोहनजोदाड़ो हैज़ बीन एक्सकेवेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो।
Archaeological Survey of India, Sir M. Wheeler led additional excavation. The partition of India in 1947 divided the country to create the new nation of Pakistan. The bulk of archaeological finds that follows was inherited by Pakistan. By 1999, over 1056 cities एंड सेटलमेंट्स हैड बीन फाउंड. तो यहाँ पे क्या हुआ, सब चीज़ें पाकिस्तान में चली गई, काफ़ी सारी किए किराए पे क्या हो गया, पानी फिर गया. यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रूपर, लोथल, ये सब कुछ प्लेसेज हैं. यहाँ पे कुछ आप एक चीज़ देख सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो जितने भी सिटीज़ हैं वो हड़प्पा रिवर के इर्द गिर्द ही हुए हैं, नियर बाई एरियाज़ में हुए हैं. मेहरगढ़, जो कि ये थोड़ा ईरान से लगता हुआ बॉर्डर है, यहाँ से चावल के भी कुछ मतलब राइस के कुछ हस्क मिले हैं, और यहाँ पे कुछ राइस के और कल्टीवेटेड लैंड से कुछ एविडेंसेस मिले हैं. मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, आप यहाँ पे देख सकते हो. दीज आर प्लेसेस राइट नाउ इन पाकिस्तान. कोटदीजी और आमरी. सुरकोदा तो गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है. लोथल डॉक यार्ड भी था मीन्स, जहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकती हैं, उसको डॉक यार्ड बोला जाता है. आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो. रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज़ इंडिकेट रिमार्केबल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं. सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम इनका हम देख लेते हैं कैसे था. यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर रिगार्डिंग ए सेंटर ऑफ अथॉरिटी और डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर इन हड़प्पा सोसाइटी. बट ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कि मे बी देयर इज पॉसिबिलिटीज दैट सम चीफ्स एंड देयर पीपल ruled over the city and make rules and regulations regarding the trade as well as other things by which things move smoothly. यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो. यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपको क्या क्या इसमें फीचर्स में क्या क्या आपको पढ़ना है. रिलीजियस लाइफ, जैसे कि वर्शिप होता था कि नहीं. तो कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि स्टैग है, राइनोसोर्स है, राइनोज है, एलिफेंट है, राइनोज है, टाइगर है, बफेलो है. कुछ यहाँ पे ये जो मिस्टिकल और कुछ मिस्टिकल एनिमल में आपको, जैसे हैरी पॉटर मूवी में एक वहाँ पे यूनिकॉर्न करके एक एनिमल होता है, तो ये भी थोड़ा मिथिकल एनिमल में आता है. एक्चुअल एनिमल में तो आप जानते ही हो, जैसे कि डियर हो गया, या एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, बफेलो हो गया. एम्बिगुअस एनिमल में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ डिवाइन एनिमल की बात की गई है. मे बी ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं. फ्यूनरी कस्टम्स इनके, जैसे कंप्लीट बुरियल्स में क्या होता है कि उनको पूरी तरीके से दफना दिया जाता है. फ्रैक्शनल बुरियल में क्या होता है, उनको मतलब पहले तो उनके डेड बॉडी को फॉरेस्ट में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ जानवर उसको उनकी बॉडी को खाते हैं, जैसे लाइक क्रो या फिर कोई और एनिमल्स, फॉक्स, वुल्फ एट्सेट्रा. इसके बाद जो बच गया उनकी बॉडी, फिर वो क्या करते थे, उसको जला देते थे, बर्न कर देते थे, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको पिट, जो गड्ढे खोद कर उसको फिर उसमें गाड़ देते थे, जैसे मुस्लिमों में किया जाता है, या फिर कॉकपिट बना के उसको फिर उसका दफना देते थे. पास्ट क्रिमेशन बुरियल में क्या होता था, इसमें कंप्लीट पूरी बॉडी को जला दिया जाता है, जैसे आज भी हिंदूज़ में ऐसा करते हैं कि बॉडीज़ को जलाया जाता है. तो यहाँ पे कुछ रिलीजियस लाइफ की कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ थी. टाउन प्लानिंग इनकी काफ़ी एडवांस था. ऐसा बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी वो क्रीट सिविलाइजेशन से मैच करती थी. क्रीट जो इटली के पास ही वहाँ पे एक आइलैंड है, तो वहाँ से मैच करती थी.
वहाँ पे एक कंट्री है छोटा सा, क्रीट आइलैंड पे, दैट द नेम ऑफ दैट कंट्री इज माल्टा एंड हिज कैपिटल इज वलेट्टा। तो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हो। इकोनॉमिक लाइफ उनका क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? एग्रीकल्चर तो दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग्स, बिकॉज इफ़ एग्रीकल्चरल सरप्लस विल बी देयर देन सिटीज़ विल बी डेवलप्ड। मैंने आपको इसका फेज बताया है स्टोन एज में, आप इसको एक बार उस लेक्चर को देखेंगे तो आप वहाँ पे से इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि अर्बन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। एनिमल हस्बेंड्री, ये प्रोसेसिंग की चीज़ें हैं, जैसे मिल्क को कलेक्ट करना, फिर उससे चीज़ें प्रोसेस्ड थिंग बनाना। ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, ट्रेड मैकेनिज्म, दीज आर आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी which tell us about the advancement of that civilizations. लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, बुस्ट्रोफेडन यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज होता था, बट ये भी सर्टेन नहीं है क्योंकि चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं हो पाई हैं। और लैंग्वेज तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि नो वन मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट इतना एबल नहीं है कि अभी वो इसके लैंग्वेज को डिसाइफर कर पाएँ। दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी भी दे आर वेटिंग टू फाइंड न्यू थिंग्स, न्यू प्लेस इन हिस्ट्री। दे आर वेटिंग, मतलब वो हिस्ट्री में अपना प्लेस, अपना एग्जिस्टेंस, अपना वैल्यू, अपना इम्पोर्टेंस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल लाइफ वहाँ पे कैसा था? पॉलिटिकल लाइफ में आप वही है, सिमेट्री के थ्रू पता चलता है कि वेस्ट साइड में जो क्या एलीट क्लास रहती थी, और ईस्ट साइड में जहाँ पे लोअर टाउन था वहाँ पे सब्जेक्ट्स आर पीपल, जो जनता थी वो लोग रहते थे। सोशल लाइफ क्या थी इनकी? सोशल हायरार्की थी, मैट्रिलिनियल सोसाइटी और पैट्रियार्की भी एग्जिस्ट करती थी, बट यहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी के एविडेंसेस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। फूड हैबिट्स, यहाँ पे कुछ हंटिंग वगैरह की काफ़ी, फिशिंग, हंटिंग के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। एग्रीकल्चरल सरप्लसेस कि बहुत सारे पोट्रीज में ग्रेन्स के कुछ एविडेंस मिले हैं। इंटरटेनमेंट के लिए इनके कुछ यहाँ पे जैसे लैडर एंड स्नेक खेला जाता था, या फिर और भी कोई जैसे शतरंज एक्सेट्रा, चेस, तो यहाँ पे इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। कॉस्ट्यूम्स, कास्केट और ये सब चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी सारा क्लॉथ से रिलेटेड इनके कुछ चीज़ें मिली हैं। ऑर्नामेंट्स, दे लाइक्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, और इसके भी यहाँ पे आमरी कोट दीजी यहाँ से इसके एविडेंसेस मिले हैं। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफैक्ट्स, तो आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें कुछ हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्राफ्ट जिसको शिल्प बोलते हैं, हिंदी में जिसको शिल्प बोलते हैं, जैसे आज के समय में ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ, आयरन स्मिथ जो वर्क करते हैं वो क्राफ्ट में आते हैं, है ना। तो आप इसको भी यहाँ से चीज़ें रिलेट कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें चीज़ें जो और भी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट नोन कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ द काइंड नाउ कॉल्ड अर्बन कल्चर एंड द लार्जेस्ट ऑफ 4 एंशियंट सिविलाइजेशन, जो पहले मैंने आपको बताया भी था। इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन से भी बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा सिविलाइजेशन था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका एक्सटेंस काफ़ी बड़ा था, जैसा कि हमने देखा वेस्ट टू ईस्ट 1550 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ कितना 1400 किलोमीटर। तो आप इस चीज़ को भी ऐसे आप मादा टू दायमाबाद 1400 किलोमीटर और सुतकांगे डोर टू आलमगीरपुर 1550 किलोमीटर। तो आप इस चीज़ को भी ऐसे यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट civilization among all 4 civilizations.
Society of the Indus River has been dated from the Bronze Age period from approximately 3300 to 1300 BCE. It was located in modern day India and Pakistan and covered an area as large as Western Europe. Harappa and Mohenjo-daro were the two great cities of the Indus Valley civilization, emerging around 2600 BCE along the Indus River Valley in the Sindh and Punjab provinces of Pakistan. Their discovery and excavation in the 19th and 20th century provided important archaeological data regarding the civilization, technology, trade, art, transportation, writing and religion. टेक्नोलॉजी भी आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे एक ये लास्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं इसको. तो ये टेक्निक यूज होता था, ये तकनीक यूज होती थी, ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी कोई भी मटेरियल बनाने में. सबसे पहले तो उसको एक सांचा बनाते थे, पैटर्न बनाते थे, पैटर्न को असेंबल करते थे, फिर डिपिंग एंड कोटिंग होती थी, फिर डीवैक्सिंग एंड फायरिंग करके होती थी, फिर उसको पिघला कर मतलब मेल्ट करके क्या करते थे, कास्टिंग करते थे, फिर नॉक आउट करते थे उसको, फिर फिनिशिंग करते थे, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन करते थे और लास्ट में क्या करते थे, पैकिंग एंड शिपिंग कर देते थे. तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ द लास्ट वैक्स टेक्निक. तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली. आइवरी स्केल भी कुछ यहाँ पे आइवरी का भी यूज होता था ऑर्नामेंटल बनाने में एंड ज्वेलरी बनाने में, और भी चीज़ें थी. आर्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आप जैसा कि क्या बोलते हैं, ऑक्स कार्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे इसके एविडेंसेज हैं और ये दर्शाता है. पीछे पोएट्री भी रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोएट्री रखी हुई है. एक आदमी बैठा हुआ है, व्हील, जो कि न्यूलिथिक एज में ही इसका इन्वेंशन हो गया था. तो ये चीज़ दिखाती है कि दे आर लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था काफ़ी एडवांस था और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था, जो किसके थ्रू प्रेजेंट हो रहा है, टेराकोटा फिगरिन के थ्रू प्रेजेंट हो रहा है. इसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा फिगरिन बोलते हैं. ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा फिगरिन. तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेगी जो कि ये शो करती है दे आर वेरी एडवांस एंड सिविलाइज्ड कल्चर. थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. इनके स्क्रिप्ट और लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं. दे बिलीव टू हैव यूज इंडस स्क्रिप्ट लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ सिंबल. A collection of written text on clay and stone tablets was unearthed at हड़प्पा. Have been carbon dated. कार्बन जैसा कि C12 और C14 यूज होता है ये पता करने के लिए कि ये कितने समय पहले एग्जिस्ट करता था और इसमें कितने कार्बन रिमेन्स हैं, उसके बेसिस पे ये लोग पता करते हैं, चीज़ें फाइंड करते हैं. तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है. आप अगर इसको डिसाइफर कर सकते हैं तो ये बड़ा अच्छी चीज़ होगा. यू शुड ट्राई अबाउट दीज थिंग्स. रिलीजन यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे ये लोग एनिमल्स की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे. और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो आप लास्ट में, लास्ट लाइन, आप लास्ट थर्ड लाइन देखिए. वन सील फ्राम मोहनजोदड़ो shows a half human half buffalo monster attacking a tiger. तो इसको ग्रिफिन बोलते हैं. ग्रिफिन में क्या होता है कि जैसा कि एक कल्पित दानव होता है, इसमें उसका जो नीचे की बॉडी होती है वो कुछ एनिमल का होता है, बीच का जो बॉडी होता है वो ह्यूमन का होता है और ऊपर का जो हेड होता है वो किसी एनिमल का होता है. तो इसको ग्रिफिन बोलते हैं. तो आप इसको यहाँ पे मोनेस्टर बोलते हैं. दिस में बी ए रेफरेंस टू द सुमेरियन मिथ ऑफ मोनेस्टर क्रिएटेड बाय अरुरु, सुमेरियन अर्थ एंड फर्टिलिटी गॉडेस, टू फाइट गिलमेस, द हीरो ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया एपिक पोएम. दिस इज ए फर्दर सजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन हड़प्पन कल्चर. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ से कि दे बिलीव लाइक समथिंग, स्वास्तिका सिंबल एक्सेट्रा, हिंदुज़म बुद्धिज़्म जो यूज़ करते हैं.
स्वास्तिक का चिन्ह होता है ना, जो नाजियों ने यूज, हिटलर ने अपने झंडे में लगाया था, फ्लैग में, नाजीज का। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं कि वी एग्जिस्ट, इनका एक जैसे स्टेटमेंट है, वी एग्जिस्ट बिकॉज वी आर, हम अस्तित्व में क्योंकि हम हैं, इसलिए अस्तित्व में। तो यहाँ पे एक प्रीस्ट का ये फ़ोटो है, जिसके आप सराउंडेड एरिया में टाइगर, बफेलो, डियर, ये सब चीज़ें देख सकते हो। एलिफेंट है, राइनोसोर्स है। आप यहाँ पे ये देखिए, एलिफेंट है, ये राइनोसोर है, ये बफेलो है, और ये टाइगर है, और इसके नीचे यहाँ पे डियर है, और ये ऑक्स पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे कुछ फिशेज, बर्ड्स, स्नेक्स और कुछ निम्फ के फोटोज है जो ये शो करते हैं कि ये प्रोटो शिवा और लॉर्ड शिवा का ये फार्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट इनके कैसे थे कि सिविलाइजेशन इकोनॉमी अपीयर्स टू बी डिपेंडेंट सिग्निफिकेंटली आर ट्रेड विच हैज was facilitated by major advances in transport technology. हड़प्पन civilization may have been the first to use wheeled transport, जैसा कि बुलक कार्ट का हमने अभी पीछे देखा। टेराकोटा फिगरिन की बात किया। ये लोथल की साइड से जो है दिखाता है कि यहाँ पे डॉकिंग फैसिलिटी थी। डॉकिंग फैसिलिटी मैंने आपको बोला, जहाँ पे शिप्स क्या होती हैं, आकर रुकती हैं, लंगर डालती हैं, अपना खाना पीना खाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, उसको डॉकिंग बोलते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, दिस इज़ फॉर यू। ट्रेड फोकस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स टू बी यूज इन हड़प्पा सिटी वर सॉफ्ट इंक्लूडिंग मिनरल्स फ्राम ईरान एंड अफगानिस्तान, लेड एंड कॉपर फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जेड फ्राम चाइना। तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी, कहाँ से होती थी, अफगानिस्तान क्या आता था, चाइना से क्या आता था, मिडल ईस्ट से क्या आता था। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इसके बारे में दिया गया, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने के लायक नहीं है, आप इसको एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है थोड़ा है, तो इसमें आपने, जैसे मैंने आपको बताया ही कि क्लाइमेट प्रिंसिपल बोलते हैं कि यहाँ पे रेन ना होने की वजह से इनकी फसल क्या हो गए, इनकी क्रॉप डैमेज हो गई, इनके फसल बर्बाद हो गए, तो एग्रीकल्चरल चीज़ें नष्ट हो गई। ये तो एक एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस बोलता है कि आर्यन ने इन्वेड किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया। इसका एविडेंसेस मिलता है आपको मोहनजोदड़ो में, और कालीबंगन में भी मिलता है, और राखी गढ़ी में भी मिलता है कि जहाँ पे कुछ लोग भाग रहे हैं और पीछे से उनके ऊपर किसी ने क्या किया, अटैक किया, और उनके बॉडीज़ में क्या है, कुछ मार्क हैं, मतलब चोट लगने के, ऐसे कुछ वुंडेड होने के, जख्म के क्या हैं, मार्क हैं। तो ये भी एक एविडेंस हो गया। और जो अदर चीज़ें आपको मतलब यहाँ पे बताती हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो गया। अगला जो थ्योरी है वो सजेस्ट करता है कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि कोई रोग फैल गया, प्लेग जैसा एक्सेट्रा, और जिसकी वजह से सिटीज़ क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ें। क्लाइमेट चेंज थ्योरी में जैसे कि बोला जाता है कि सरस्वती रिवर ने अपना सूख गई, उसने अपना रिवर कोर्स जो है, पाथ अपना चेंज कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भूखे मर गए। और मेजर इन्वायरमेंटल चीज़ में क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, फ्लडिंग हुआ, ड्राफ्ट हुआ, दीज आर सम रिवर चेंजिंग कोर्स, ये सब चीज़ें हुई। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, स्टारवेशन, डिसीज एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें भी हैं। कुछ और भी एविडेंसेज हैं जो ये बोलते हैं कि हैवी रेन्स हुए, मानसून और एट्सेट्रा, जैसे कि फ्लडिंग हुआ, तो इसकी वजह से ही ये चीज़ें यहाँ पे ड्राइड अप हो गई, और सिटीज़ क्या हो गए, फ्लोरिस्ड हो गए, बह गए पानी में, है ना। ये भी चीज़ें कुछ इंडस मतलब कुछ एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं। एक साइट है जहाँ से ये आप
कुछ रिमेन्स देख सकते हो ब्रिक्स के। कंक्लूजन पे हम आते हैं। कंक्लूजन में देखते हैं कि एजुकेशन ऑफ साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटिन्यू, मोर इन्फॉर्मेशन विल नो डाउट कंट्रीब्यूट टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ द कल्चर वास्ट एकम्प्लिश। तो ये स्कॉलर हैं जेफरी डी लॉन्ग ने, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि देयर इज़ मच फैसिनेशन विद दिस सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो किसी भी देखो कोई भी चीज़ हो, जैसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ग्रो कर रही हो या बहुत जल्दी किसी ने कुछ अचीवमेंट कर लिया हो, तो वो चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाता है क्योंकि उसने चीज़ों प्रॉब्लम्स नहीं देखे होते हैं। तो यहाँ पे यही एक फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल निकल के आया कि इफ़ समथिंग इज बिकम मोर एडवांस, मोर मेच्योर, मोर टेक्नोलॉजिकल, तो उसका जो डिक्लाइन है बहुत जल्द होगा। ये भी एक यहाँ पे फिलोसफिकल चीज़ें निकल के आती है। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये थोड़ा हमारा फिर यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में करके बताए हैं, आप इसको देख सकते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको डिटेल में देख सकते हैं। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना मेन कॉन्टेस्ट था उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे एक जो कॉन्टेस्ट शूट रहा था वो टेक्टोनिक प्लेट का लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स के भी कुछ एविडेंसेज हैं, सीस्मिक एक्टिविटीज़ हुई जिसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ। तो ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे कुछ ये चीज़ें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।